अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में दौरान डकैती शहरियों को कत्ल और ज़ख्मी करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान दौरान वारदात क्या क्या कुछ करते थे और एक उनमें से जो परफ्यूम लगाता था वो परफ्यूम क्यों लगाकर वारदात करता था। पुलिस ने मुलजमान से क्या इंकशाफात करवाए हैं, कितनी रिकवरी हुई है और मुद्दई जिनके प्यारे वारदातों के दौरान या बिछड़ गए या ज़ख्मी हुए उनको क्या उम्मीद थी कि मुलजमान कभी पकड़े जाएंगे, और इन मुलजमान के साथी कुछ अर्सा पहले पुलिस इनकाउंटर में मारे भी गए थे, वो किस वजह से पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जिन मुलजमान को आज CIA गाज़ियाबाद ने पकड़ा है, ये लाहौर की बाउंड्री के ऊपर वारदातें करते थे। कभी ये लाहौर यानी काना और उसके जो मुतसिल इलाके हैं वहाँ पे वारदात करते थे और कसूर में चले जाते थे, और इसी तरह कभी कसूर में वारदात करते थे और लाहौर में आ जाते थे, जिसकी वजह से लाहौर पुलिस को और कसूर पुलिस को अपनी जो हदूद का तयन करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ ये 5 अफराद के ऊपर मुश्तमिल गैंग था, जिसमें से 2 ऐसे थे जो दौरान डकैती रेप भी करते थे, और ये इतने ज़्यादा लीथल हो चुके हुए थे, इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हुए थे कि ये दौरान वारदात कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते थे। इस टाइम CIA नवाकोट के पास 5 मुलजमान में से 3 जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? इजाज़, कितनी वारदातें की और कौन सी वारदातें करते हो? 15 से 16 वारदातें की हैं। हाँ, डकैती। अच्छा, ये सड़क के ऊपर डकैती करते हो, घर में करते हो, कहाँ करते हो? घरां 'ਚ भी कर लईदी है ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਆਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ? 3। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਪਹਿਲੇ ਆਸਫ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ 2। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਫਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਆ? ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਾਨੇ ਦਾ। ਕਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਰੋਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ। ਹਾਲੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ? 1.5 ਸਾਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ।
ये परफ्यूम है जी जाज और जज्जी साहब जो लगाते हैं, जो इनको इनकी गर्लफ्रेंड ने दी थी, और क्योंकि ये अमीर नहीं थी इसलिए उन्हें इनकार करता। हाँ जी। उनके वालदैन ने, क्योंकि ये अमीर नहीं थे इसलिए इनकार कर दिया, और अब ये वारदातें करते हैं और परफ्यूम लगा के ये बड़ी अच्छी वारदात करते हैं। तेरा की नाम है जी? नसीर। नसीर 1.5 साल पहले गैंग ज्वाइन किया? हाँ जी। पहले ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਜੱਜੀ ਉਰਫ ਜਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਉਰਫ ਜ਼ਫਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਸਫ ਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ, ਅਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਵੇਰੇ ਬੂਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰੇ ਬੂਰੇ। ਅੱਛਾ, ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਵਾਰਦਾਤ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ 17-18 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਫ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਿਫ ਕਿਹੜਾ? ਆਸਫ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਸਿਫ। ਆਸਫ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਫਰੀ ਕਰਾਮਤ ਜੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਡਵੇਦ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ 2017 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਗੈਂਗ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜੱਜੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜੱਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ। ਜੱਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਸਿਫ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ, ਰੇਪ ਦੌਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ, ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਫਰ ਕਰਾਮਤ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੈਨ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਬਸ ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਇੱਧਰ ਮੰਗੇ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਸਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ? ਬਸ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਫਿਊਮ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। अब मुक गई है। आप मुसलमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि वारदात करने के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए, और वो परफ्यूम के अंदर मोटिवेशन है। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर सही साहब मौजूद हैं। सही साहब इंतहाई ख़तरनाक मुलजिमान है, लेकिन जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे हंसी आ गई। ये परफ्यूम कहाँ से बीच में आ गई वारदातों के दौरान, और आप लोगों ने बरामद भी कर लिया? इनका एक शौक होता है, ये इन्होंने पहले कोई मशरूब बनाया था, वो बेवफाई करके जो उसने परफ्यूम उसने दी थी इस तोहफे में, ये अभी उसकी याद में परफ्यूम लगाता है। आप लोगों ने कहाँ से बरामद कर ली? ये इसने बताया मुझे कि जी हम परफ्यूम लगाते हैं, मेरी मशूक ने मुझे परफ्यूम दी है, तो फिर वारदात करने में जोश पैदा होता है, तो इसलिए ये परफ्यूम लगाते हैं। थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, काफ़ी अरसे से ये परफ्यूम इस्तेमाल करता है। ये करता उस वक्त ही है जिस वक्त ये इसने वारदात करनी है। आप लोगों ने तो नहीं लगाई कहीं? नहीं, अभी हमने नहीं पता चले आप लोग भी लगा नहीं, के हम कोई नहीं जोश आ लगाते, जाए। हम लगाते नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, ये मुलजिमान जैसे ये एक ऐसे गैंग के कारिंदे हैं जो इंतहाई लीथल थे, जिन्होंने दौरान डकैती रेप किए हुए हैं और बाद में पुलिस मुकाबले में मारे गए, तो इन मुलजिमान की क्या हिस्ट्री है? ये मुलजमान जो है ना, ये पहले जो जब ये कार्रवाई करते थे ना पुलिस की, ये एक जगह वारदात करते थे, वहाँ 15 की कॉल हो जाती थी, ये वहाँ से छोड़ते थे, दूसरे इलाके में चले जाते थे। कसूर में, शेखुपुरा में, रायवेंट रोड और मांगा रोड पर इन्होंने बहुत ज़्यादा वारदातें की हुई हैं, जिनकी रिकवरी भी इन्होंने करवाई हुई है।
अभी जो सीनियर अफसरान हैं वही आपसे ज़्यादा जो गुफ्तगू करेंगे वही बताएंगे आपको आप ये कैसे हैं। हम तो ये बता सकते हैं कि ये मुलजमान नहायत ही ख़तरनाक थे और राजा साहब की बदौलत टेक्निकल तरीके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वारदात करके जाते कहाँ पे थे, क्यों नहीं ये पकड़े मुख्तलिफ जाते थे? जगह पर चले जाते थे। नहीं, पकड़े क्यों नहीं जाते थे? ये एक दूसरे को घर नहीं बताते। इनमें से कोई पहले सजा याफ्ता है? इनमें से पहले सजा याफ्ता अभी कोई नहीं है। कभी नहीं पकड़े गए? अभी ये पकड़े ही नहीं गया पहले। वारदात करके तुम लोग किधर जाते थे? कभी किधर चले जाते कभी किधर चले जाते किसी भी केस में नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़ेगा। जैसे तुम सारे बता रहे हो 18, 19 तुम्हारे पे केस है, कभी नहीं पुलिस ने नहीं पकड़ा? कभी नहीं पकड़ेगा। इस पहली तीनों में दफा से किसी को नहीं पकड़ा? नहीं जब पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें तुम्हारे 2 साथी मारे गए, जी। तुम भाग गए, उसके बाद कितने अरसे तक वारदात नहीं की तुमने? मैं फिर सऊदीया चला गया था, उसके बाद आया हूँ तो फिर कितने अरसे बाद सऊदीया से आए? 2 साल के बाद। तो जो पर्चे तुम्हारे पे हुए हैं वो नामजद थे, नाम मालूम है? नाम लूम थे। सारे नाम मालूम? जी। कभी किसी पुलिस ने छापा मारा हो तुम्हें पता चला हो कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है? कुछ नहीं ऐसा हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही साहब, ये क्या वजह है कि इतने खतरनाक मुलजिमान, आप अपने मुंह से भी इस चीज़ का कह रहे हैं, इतने खतरनाक मुलजिमान हैं, कभी वो ट्रेस ही नहीं हुए? सर असल में जो पहले मुसलमान थे जो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, ये रायमंड थाने वालों में पुलिस मुकाबला हुआ था, ये दौरान वारदात फायरिंग करते हुए भाग गए थे। तो इसका हुलिया और ये फोटेज वगैरह किससे हमने इसे ट्रेस किया है, काफ़ी अरसे बाद ये ट्रेस हुआ है। ये किस वारदात में अभी पकड़ा गया? अभी इसने वारदात की है दामी बाग में और ये इलाका थाना लोअर माल है, वहाँ पर वारदात की है, काने वारदात की हैं और रायमंड में वारदातें की हैं। ये इनके इंसाफ हैं। ठीक हो गया। अभी इन्होंने दौरान वारदात जितनी भी रिकवरी हमारे पास आई है जमा हुई है, अभी बकाया रहती है और एक आधा मुलजम भी बकाया रहता है। तो इंशाल्लाह टेक्निकल तरीके से पकड़ ले। सही, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असगर। क्या वाकया पेश है और किसके साथ पेश आया था? मेरे भाई के साथ आया सर। वो लोहे का कारोबार करता था, मिस्री शाह में उसका अपना गोदाम था, तो मुख्तलिफ शहरों में वो माल सप्लाई करता था। तो जारी बात है उधर से पैसे वो रिकवरी इकट्ठे करने गया था, तो जब 7 साढ़े 7 लाख रुपए उसके पास मौजूद थे, मुगलपुरा पुल के करीब आया तो उधर वारदात उसके साथ हुई। आप साथ थे या वो अकेले थे? साथ ही थे। क्या हुआ क्या वहाँ पे? वो जब बैंक से पैसे हमने लिए तो हम जा रहे थे, तो रास्ते में पीछे से लग गए हमारे, पता नहीं, फिर वो आगे गए तो हमको बाइक पे थे तो रोक लिया। कितने पैसे थे? 3.5 लाख। मुकदमा कहाँ पे दर्ज हुआ आपका? मुस्तफाबाद थाने में। कसूर? जी। जो लाहौर में इन्होंने वारदातें की हैं हाल में, एक तो ये वारदात होगी जिसके अंदर ये 7.5 लाख रुपए गया, और वारदातें कौन से इलाकों में की हैं, कौन से फेवरेट इलाके हाँ, थे जो इनके? इनके फेवरेट इलाके जो हैं वो जो जैसे नई आबादी हैं सोसाइटियों की, कांधे के पास, रायविंड की तरफ, और ये लाहौर में भी ये रैकी लेने के बाद ये वारदातें करते हैं। और ये मुकम्मल ट्रेन याफ्ता और मुकम्मल अपने काम में इनको मुकम्मल महारत हासिल है। पकड़े क्यों नहीं गए पहले, किधर चले जाते थे? जाहिर है जब इन्होंने इनके 2 साथी पुलिस मुकाबले में कसूर पुलिस ने मार दिए थे और ये कुछ अरसे के लिए सिंध की तरफ जाकर रूपोश हो चुके हुए थे, तो ये पंजाब की तरफ ये लोग नहीं आए थे। और इनको इस चीज़ का दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि ये लोग ये चीज़ जानते थे कि पुलिस मोबाइल से पकड़ती है।
मुल्ज़मान के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इन मुल्ज़मान के दो साथी हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और ये मुल्ज़मान फ़रार हो गए। यहाँ से भी आप इनके चालाक होने का अंदाज़ा लगाएं कि आज तक 17-18 वारदातें हैं, लेकिन किसी भी वारदात में ये पकड़े नहीं गए। ये पुलिस की नाअहली है या सिस्टम की, ये तो दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन इन मुल्ज़मान ने जो वारदातें की उनमें से एक शख्स जो था वो जान की बाजी हार गया, जिसका मुकदमा मुस्तफ़ाबाद कसूर में दर्ज किया गया था। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और एक वारदात हाल ही में लाहौर में हुई थी और उनको भी पाँव में गोलियां लगी थी। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोग मुद्दई हैं, इंसाफ की उम्मीद थी, क्या वाक़या पेश आया? मोहतरम आपका नाम? मोहम्मद असगर। क्या वाक़या पेश आया और किसके साथ पेश आया था? मेरे भाई के साथ आया सर। वो लोहे का कारोबार करता था, मिस्री शाह में उसका अपना गोदाम था, तो मुख्तलिफ शहरों में वो माल सप्लाई करता था। तो जारी बात है उधर से पैसे वो रिकवरी इकट्ठे करने गया था, तो जब 7-7.5 लाख रुपए उसके पास मौजूद थे, मुगलपुरा पुल के करीब आया तो उधर वारदात उसके साथ हुई है सर। कितने मुल्ज़मान थे जिन्होंने वारदात की? ये सर 3 मुल्ज़मान थे मोटरसाइकिल पे। आपके भाई ने आगे से कोई मज़ामत वगैरह की? क्या मज़ामत की सर उसने? जारी बात है, हकलाल की कमाई कौन देता किसी को, ऐसे आसानी से तो नहीं दे देता। वो जब इन्होंने पैसे छीने तो उसने मज़ामत की, इन्होंने फायर मारे उसको। कहाँ पे फायर लगे? सर एक तो सीने पे लगाया गया सीधा, एक तो टांगों में लगे थे। अब उनकी हालत कैसी है? बस ज़ेर इलाज है। आप लोगों को उम्मीद थी? मुकदमा कौन से थाने में दर्ज हुआ था आपका? ये सर अपना मुगलपुरा। ठीक, आप लोगों को उम्मीद थी कि मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे? जाहिर सी बात है, इंशाअल्लाह ताला दिन का वकूआ है सर, ये कौन सा रात का है। और दूसरी बात ये है कि कोशिश की है, हमने भी की है और पुलिस ने हमसे ज़्यादा कोशिश की है। हमारे मुल्ज़मान ट्रेस करने में पुलिस ने ज़्यादा कोशिश की। ये मुल्ज़मान जो अभी पुलिस ने पकड़े हैं, आपने अपने भाई को भी डेफिनेटली बताया होगा। जी जी। ये ज़्यादातर वारदातें तो या तो शहर के जो बाउंड्री एरिया बॉर्डर है उसके ऊपर करते रहे या कसूर में करते रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके मुल्ज़मान पकड़े गए और फिर आप लोगों ने इनको कैसे पहचाना? सर जो ये हालात बताते हैं, देखो ये कसूर करते रहे उसका तो मुझे इल्म नहीं है, किधर करते रहे किधर नहीं, लेकिन मेरे भाई के साथ जो वारदात की है वो इन्हीं लोगों ने की है। ठीक है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ दुकानों से भी पता किया कि यार वो कैसे बंदे थे, कैसी मोटरसाइकिल थी, जो टाइम टेबल, जो हालात या जो इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं मेरे भाई के मुतल्लिक, ये 7.5 लाख रुपया गया। पुलिस कोई रिकवरी वगैरह दे रही है आप लोगों को? जी पुलिस हमारे साथ पूरा ताउन कर रही है। चलो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक ऐसे भी हैं जिनके भाई को इन्होंने दौरान डकैती कत्ल कर दिया था, इनसे जानते हैं। मोहतरम आपका नाम? मोहम्मद नवाज। नवाज, क्या वाक़या पेश आया था और किसके साथ पेश आया? मेरे भाई के साथ। कहाँ पे? वो मुस्तफ़ाबाद। क्या हुआ? वो ज़राई बैंक से पैसे लिए हैं, तो लेके जा रहे थे घर, तो रास्ते में डकैती हुई है। मेरे भाई को मज़ामत की है तो आगे से फायर मारा। आप अकेले थे? आपका भाई अकेला था? जी। आप साथ थे या वो अकेले थे? साथ ही थे। क्या हुआ क्या वहाँ पे? वो जब बैंक से पैसे हमने लिए तो हम जा रहे थे, तो रास्ते में पीछे से लग गए हमारे, पता नहीं, फिर वो आगे गए तो हमको बाइक पे थे तो रोक लिया। कितने पैसे थे? 3.5 लाख। मुकदमा कहाँ पे दर्ज हुआ आपका? मुस्तफ़ाबाद से थाने। कसूर? जी। तो कसूर के मुल्ज़मान यहाँ पे फिर आप क्यों आए? वो हमें CIA लाहौर पुलिस ने कॉल की कि आपके मुल्ज़िम जो है ना वो पकड़े गए, तो हम इधर आए हैं। हमारी उनसे अपील है कि कम करना, जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आपके भाई मौके पे ही फौरी उसी टाइम दम तोड़ गए थे या अस्पताल वगैरह जाके ज़ेरे इलाज रहे? जी मौके पे ही दम तोड़ गए। उम्मीद थी मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे, इंसाफ मिल सके? जी इंशाल्लाह पुलिस पे हमको भरोसा था, कुछ हमने उनका ताउन किया। ये कब का वाक़या है? ये वाक़या कब पेश आया था? तकरीबन 8 माह पहले की बात है। तो कसूर पुलिस ने क्यों नहीं कोशिश की, या आपने कभी उनसे पूछा था मुल्ज़मान का क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है? हम गए थे, बोलते थे पकड़ते हैं आदमी तो आपको कॉल करते हैं, कुछ भी नहीं। बाद में इधर से हमको लाहौर से कॉल आई है CIA स्टाफ पुलिस ने कि ये सिविल लाइन तो आपके आदमी पकड़े गए हैं, शाम आए इधर थाने में। पहचाना है आपने बंदों को? अभी दिखाया आपको पुलिस ने बंदे? जी जी।
ठीक हो गया। डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दानिश साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि मुलजिमान पहली दफ़ा, यानी वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 18-20 वारदातें कर चुके हैं और जिनके वो साथी बता रहे हैं खुद को, वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हुए हैं, दौरान डकैती, रेप, मर्डर की मुतअद्दिद उन्होंने वारदातें की हुई थी और आज तक कभी नहीं पकड़े गए, पहली दफ़ा पकड़े जा रहे हैं? नहीं, इनका ये कहना तो मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। इनमें 2 बंदे रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और ये इनमें से एक रैशी कसूर का है, एक चूनिया का है। ये लाहौर के कुछ मुकाम डकैती करने के बाद जब ये वापस जाते हैं कसूर की तरफ तो वहाँ से भी ये वारदातें करते हैं और ये नहायत इस अपने काम में महारत रखते हैं। कुछ अर्सा पहले एक का मामू, एक का भाई दौरान रेप डकैतियाँ भी लोगों ने की हैं, वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। और जो अभी हमने पकड़े हैं ये कुछ अर्सा के लिए रूपोश सिंध की तरफ जा चुके थे। हम इनके पीछे लगे हुए थे, ये बंदे कौन है, आखिरकार इनको पकड़ लिया है। लाहौर में भी इन्होंने तकरीबन हमारे सिविल लाइन में, इसके अलावा बाकी डिवीजन में 17 के करीब इन्होंने वारदातें तस्लीम की हैं और जिसमें तकरीबन 35 लाख 36 लाख करीब हम रिकवर कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर जो चीज़ एक सामने आई है हमारे कि इनमें से एक मुलज़िम जावेद जज्जी जो कि वारदात के दौरान अपने आप को परफ्यूम लगाकर वारदात तेज़ी से करता था। जब ये वजह पूछी गई है, ये वजह क्या है वारदात करने में परफ्यूम लगाकर इतना एक्टिव होने की क्या वजह है, तो ये बात सामने आई है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी जो इसके साथ बेवफाई कर गई है, जिसका ये शिकारपुर सिंध की तरफ शादी उसकी हो चुकी हुई है और उसी बेवफाई में इसकी गुर्बत की वजह से इसने शादी दी उसी की है। तो इसने गुर्बत की वजह से वारदातें शुरू इससे गुर्बत के अमीर होने की वजह से ताकि बता सके उसके बाप को कि मेरे पास पैसा आ चुका हुआ है। इसके पास तकरीबन हमने कोई 17 लाख प्लस रिकवरी कर चुके हुए हैं। जो लाहौर में इन्होंने वारदातें की हैं हाल में, एक तो ये वारदात होगी जिसके अंदर ये 7.5 लाख रुपया गया, और वारदातें कौन से इलाकों में की हैं, कौन से फेवरेट इलाके हैं? जो इनके फेवरेट इलाके जो हैं वो जो जैसे नई आबादी हैं सोसाइटियों की, कांदे के पास, रायविंड की तरफ, और ये लाहौर में भी ये रैकी लेने के बाद ये वारदातें करते हैं। और ये मुकम्मल ट्रेन याफ्ता और मुकम्मल अपने काम में इनको मुकम्मल महारत हासिल है। पकड़े क्यों नहीं गए पहले, किधर चले जाते थे? जाहिर है जब इन्होंने इनके 2 साथी पुलिस मुकाबले में कसूर पुलिस ने मार दिए थे और ये कुछ अरसे के लिए सिंध की तरफ जाकर रूपोश हो चुके हुए थे, तो ये पंजाब की तरफ ये लोग नहीं आए थे और इनको इस चीज़ का दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि ये लोग ये चीज़ जानते थे कि पुलिस मोबाइल से पकड़ती है। जब हमने से पूछा गया ये आपको इतनी अच्छी और इतनी मुफीद मालूमात कैसे इल्म है, तो इन्हें बताया ये सारी मालूमात हमें जेल से मिलती थी। जब हम जेल में गए थे तो जेल में से पुलिस जो पकड़ने का तरीका था उनका पुलिस का, तो वो हमने वहाँ से चीज़ सीखी कि पुलिस मुसलमान को इस तरह ट्रेस करती है। दानी साहब, ये माइंडसेट क्या है कि जब ये आप 3 बंदे जाएं डकैती कर रहे हों, एक बंदा निहत्ता हो तो वो डर जाता है, तो ये फायर मारने समझ नहीं है। जैसे ये भी कह रहे हैं कि इनके भाई को तीनों ने लूटा और बाद में फिर फायर मार दिए, वो तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, बच गए। इनके भाई को भी फायर मारा मौके पे, वो फायरिंग क्यों करते थे? जब मैं तो ये कहूँगा जो मैंने अपनी सर्विस में देखा है, जो थोड़ी सी आगे मज़ामत करे ये लोग उस वक्त डरे होते हैं। और ये भी एक कहावत मशहूर है, चोर का और सांप का वार कभी खाली नहीं जाता। और ये भी चूँकि डकैत थे और इनका वार भी खाली नहीं जाता था। अपनी तरफ से अगर ये बचावा ही मारते हैं तो लगता सही था। अब अपने कितने मुकदमा जो है इन्होंने भी साफ किया? हमारे पास 17 मुकदमा लाहौर के ट्रेस हो चुके हुए हैं। ये 17 वारदातों में अंदाजन कितना इन्होंने पैसा लूटा था? तकरीबन जो हमारे पास रिकवरी आ चुकी है 30 से 35 लाख हम रिकवर कर चुके हुए हैं और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा इन लोगों ने वारदातें की हैं। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन और कोई साथी वगैरह हैं इनके? हाँ, इनके साथी हैं जिनके लिए टीमें हमने शेखुपुरा के इलाके में रवाना की हुई है, कल की गई। उम्मीद है कि 1-2 दिन ये सारे मुलजमान शेखुपुरा ही क्यों जाते हैं? क्योंकि शेखुपुरा में चूँकि अगर देखा जाए पंजाब के जो शायर हैं
जहाँ पे जुर्म बहुत ज़्यादा है वो शेखुपुरा उनमें टॉप पे आता है। जितने भी जुराम पेशा लोग हैं उनका तल्लक शेखुपुरा में अगर निकलेगा या फिर उनकी दोस्ती वगैरह शेखुपुरा लाजमी, वो लोग ऐसे लोगों को पनाह इन देने में मुल्जिमान को मशहूर कहाँ है। से पकड़ा? जी, इन मुल्जिमान को कहाँ से पकड़ा? इन मुल्जिमान हमने पता की से आगे से पकड़ा जी। सही, बहुत शुक्रिया। दानिश रांझा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। लाहौर जैसे शहर के अंदर मुल्जिमान जो है वो धड़ल्ले से दिन दिहाड़े वारदात करते हैं और असले के ज़ोर पे लूटते हैं, और अगर कोई मज़ाहमत करे तो उसको गोली भी मार देते हैं और बेदरेख गोली मारते हैं। दो मुद्दई हमारे साथ मौजूद बैठे हैं, जिनमें से एक का भाई जो है वो खुशकिस्मती से बच गया, जबकि दूसरे का भाई जो था वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। सिर्फ इन दो वारदातों के अंदर तकरीबन 11 लाख रुपया मुल्जिमान ने लूटा था। परफ्यूम लगाने वाली चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि परफ्यूम लगा के वारदात करके उसको एक मुख्तलिफ सा जोश आ जाता है। ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं उनके गिरफ्तार ना वारदातों इतनी वारदातों के बाद सिर्फ एक दफ़ा गिरफ्तार होना भी पुलिस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। शेख साहब, कुछ मुकदमे जो हैं वो कसूर में दर्ज हैं, कुछ लाहौर में दर्ज हैं। ये कभी वारदात करके बॉर्डर क्रॉस करके कसूर में चले जाते हैं, कभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब पकड़े यहाँ पे गए हैं तो इनकी तमाम ट्रायल जो यहाँ पे ही होगा? नहीं, इनका ट्रायल वहीं पर होगा जहाँ मुकदमात दर्ज थे, जहाँ पर उन्होंने जराइम किए हैं। वो डकैती है, वो मर्डर है, वो जैसे आपने कहा अगर रेप के मुकदमात में इन्वॉल्व है, जो भी हैं जहाँ पर मुकदमात दर्ज हैं और जिनमें ये इन्वॉल्व हैं, ये सारे वहाँ पर होंगे। चूँकि सिस्टम ये है कि पुलिस का, चूँकि आप सूबाई पुलिस हो या आप देखें कि जो हमारी जो नेशनल लेवल पर जो FIA है और दूसरे इदारे हैं जो पूरे मुल्क में कंट्रोल करते हैं, किसी भी तरह से कोई भी अगर जो पुलिस में या पुलिस के पैरेलल दूसरे इदारे हैं वो कानून नाफिज करने वाले किसी भी मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ेंगे तो वो दूसरी जहाँ रिक्वायर्ड है पुलिस को वहाँ पर उसके हवाले कर देंगे। लेकिन कुछ मुकदमे इनके यहाँ पे भी तो दर्ज वो यहाँ पर भी उनके लिए ट्रायल यहाँ चलेगा। मेरा बड़ी माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में ये इस्लाह बहुत आम है कि ये प्यार में नाकामी के बाद ऐसा हो गया है। क्या वाकई अगर कोई शख्स को अगर कोई रिलेशनशिप है उसके अंदर नाकामी हो जाए तो वो नेगेटिव माइंड हो सकता है? डिपेंड करता है, जिसने कुछ ज़्यादा जिस पे फिल्मी असर आए तो वो ज़्यादा नेगेटिव माइंड हो जाता है कि मैं बदला लूँगा, मैं ये करूँगा। वरना बेसिक प्यार जो हमें हमारी जो लोक दास्तानें हैं, जो हिस्ट्री है वो बताती है, प्यार में रिवेंज तो नहीं होता। प्यार तो करने का नाम है, दे देने का नाम है, छोड़ देने का नाम है, आज़ाद करने का नाम है। ये जो प्यार में विनिंग है ना कि मैंने विन करना है, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती, इस तरह बर्बाद करना, उजाड़ना, रिवेंज, बदले वगैरह, तो ये एक, मैं तो कहूँगी कि ये ज़हनी बीमारी जो है, ये एक ओवरऑल ज़हनी बीमारी की और बदले की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये भी इंकशाफ मुल्ज़िमान ने किया है कि वो एक रोज़ में 2-3 वारदातें उनकी मामूल की वारदातें हैं। इस तरह के मुल्ज़िमान का जब केस अदालत में जाता है तो किस तरह से उनको डील किया जाता है, क्या सज़ाएं इनके ऊपर लगती हैं और क्या ऐसे मुल्ज़िमान के साथ कोई रियायत स्टेट या अदालत की तरफ से बरती जा सकती है, ये भी तमाम चीज़ें जा रही हैं। शेख साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया।
शेख साहब 5 बंदों का एक गैंग है जिसमें से 2 जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, 3 जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से डकैती मज़ामत पर लोगों को कत्ल करने की वारदातें शुरू कर देते हैं। किस किस्म की सज़ाएँ ऐसे मुलज़मान के लिए हमारे ताज़ीरात में हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियरली समझनी चाहिए कि जो मुलज़मान पकड़े गए हैं और जो भाग गए हैं, सब के ऊपर चार्ज जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इंडिपेंडेंट प्रूफ, शहादतें, सबूत वगैरह देकर साबित करना है। जो हमारे इनकाउंटर में मारे गए हैं उनके ऊपर डेफिनेटली वो डिफेंस का उनके पास राइट नहीं है, तो जो पुलिस सामने लेके आएगी वही मनो अन जो है वो तस्लीम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कोर्ट के पास। कोर्ट इन सारे मामलात को इंडिपेंडेंटली देखेगी कि आया ऐसी शहादत मौजूद है कि जिसके ऊपर बिलीव करके सज़ा दी जाए, इवन जो पुलिस मुकाबले में मर्डर हो चुके हैं, ताकि वो जो चार्ज उनके ऊपर पुलिस की तरफ लगाया गया है वो साबित हो सके। अब जो लोग भाग गए हैं, मौके से फरार हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने दफ़ा तो वही लगेगी जो मेन FIR में थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये साबित करना है कि ये जो अशखास बाद में पकड़े गए हैं, मौके पर नहीं थे, ये उसमें शामिल थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह हुई है और ये अब मौके से उस वक्त मौके से भाग गए थे और अब ये उनको किसी और मुकदमे में या किसी और तरीके से उन्होंने अपने ज़राए से उनको पकड़ा है, तो ये उन मुकदमा में इन्वॉल्व थे। तो सब के लिए चार्जशीट जो है वो पुलिस और अदालत के सामने डिफरेंटली अलग-अलग पेश होगी और सब ने अपनी अपनी सज़ा अपने मुकदमे के मुताबिक, अपनी दफ़ात, अपने जुर्म के मुताबिक जो है वो लेनी है, मिक्सअप नहीं होगा। इनके ऊपर शेख साहब कुछ मुकदमे जो हैं वो कसूर में दर्ज हैं, कुछ लाहौर में दर्ज हैं। ये कभी वारदात करके बॉर्डर क्रॉस करके कसूर में चले जाते हैं, कभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब पकड़े यहाँ पे गए हैं तो इनकी तमाम ट्रायल जो यहाँ पे ही होगा? नहीं, इनका ट्रायल वहीं पर होगा जहाँ मुकदमा दर्ज थे, जहाँ पर उन्होंने जराइम किए हैं। वो डकैती है, वो मर्डर है, वो जैसे आपने कहा कि रेप के मुकदमा में इन्वॉल्व है, जो भी हैं, जहाँ पर मुकदमा दर्ज हैं और जिनमें ये इन्वॉल्व हैं, ये सारे वहाँ पर होंगे। चूँकि सिस्टम ये है कि पुलिस का, चूँकि आप सूबाई पुलिस हो या आप देखें कि जो हमारी जो नेशनल लेवल पर जो FIA है और दूसरे इदारे हैं जो पूरे मुल्क में कंट्रोल करते हैं, किसी भी तरह से कोई भी अगर जो पुलिस में या पुलिस के पैरेलल दूसरे इदारे हैं वो कानून नाफिज करने वाले किसी भी मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ेंगे तो वो दूसरी जहाँ रिक्वायर्ड है पुलिस को वहाँ पर उसके हवाले कर देंगे। लेकिन कुछ मुकदमे इनके यहाँ पे भी तो दर्ज है। वो यहाँ पर भी उनके लिए ट्रायल यहाँ चलेगा। जो मुकदमा यहाँ कायम है उनके ट्रायल यहाँ चलेंगे, जो मुकदमात दूसरे शहरों में हैं या दूसरे सूबों में हैं उन पर मुकदमा वहाँ चलेंगे। सब डकैती मज़ामत पर कत्ल, डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी करने और डकैती करने की दफ़ात जो हैं वो क्या कहती हैं? उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, पनिशमेंट कितनी है और मिनिमम क्या है? ये संगीन जराइम में शुमार होते हैं। आप देखें कि अगर जो डकैती है कुछ अर्सा हो गया, इसमें भी बड़ी संगीनी शामिल कर दी गई है और इसको 14 साल से ज़्यादा की सज़ा इसके लिए रखी गई। और जहाँ मर्डर आ जाए तो मर्डर के साथ फिर आप ये समझ लें कि ये सज़ा के साथ एडिशनल जो है अगर मर्डर का चार्ज लग जाता है कि उन्होंने इस तरह ये वारदात भी की है तो मर्डर की जो सज़ा तय होगी जिसके अंदर ताज़ीरात में जाएंगे तो आप समझ लें कि उनके 25 साल सज़ा में जाएंगे। और अगर वो किसास में जाते हैं तो फिर आप ये समझ लें सज़ाए मौत जो है अगर जब इनका चलान पेश किया जाएगा और केस चलना शुरू होगा और अदालत के सामने पुलिस ये वाली प्ली भी लेती है कि ये मुलज़मान के साथी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं और ये इतने हार्डन थे, तो उसका कोई उनको सज़ा में कोई इफेक्ट आता है? ये देखिए, इसको बतौर वकील और आप बतौर जर्नलिस्ट हमें इस पर थोड़ा शक करना पड़ेगा कि आया ऐसे मुलज़मान उन्होंने पकड़े हैं जिनका बर्डन जो है वो जो पहले जो मुकाबले में मारे जा चुके हैं उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो इसके ऊपर अदालत के ऊपर बर्डन ज़्यादा है और स्पेशली पुलिस के ऊपर कि वो ये प्रूव करें कि ये वही लोग हैं जो पहले मुकदमात में इन्वॉल्व थे और उनके साथी थे और ये जो मुकदमात जिनमें डकैती और बाकी हैं उनमें इनका कोई एक्टिव रोल था। तो ये बढ़ जाती है वैसे अगर अदालत के हाँ, सामने वो देखें कि जो डकैती के मामलात है जहाँ पर जिनमें कानून में ये लिखा हुआ है कि 5 या 5 से ज़्यादा अशखास होंगे तो वो डकैती जो है वो राजधानी के ज़िम्मे में आएगी, उसकी सज़ा ज़्यादा है। इस तरह अगर कोई अकेला शख्स या 2 करते हैं तो उसकी सज़ा कम है। तो इसी तरह अगर ये उनमें शामिल कर रहे हैं तो इसमें देखना पड़ेगा कहीं पुलिस अपनी जान तो नहीं छुड़ा रही, पुराने मुकदमात में डालकर उनको मुलज़मान को फ़ायदा तो नहीं दिया जा रहा, या मुलज़मान को इसलिए शो किया जा रहा है कि पहले शायद ये पुलिस की हिरासत में ही हो
और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। 2017-18 बैद नहीं है, हमारी पुलिस आप जानते हैं कि इन मामलात में काफ़ी एक्टिव है और ये मामलात इल्ज़ामात हमेशा पुलिस के ऊपर स्पेशली जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में लगते रहे हैं कि ये लोग ऐसे इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने खुद लोगों को मारा है। तो ये सारी चीज़ें अदालत में जब केस आएगा तो शहादतों के ज़रिए देखनी पड़ेंगी, कोर्ट के सामने मामला आएगा ट्रायल में, तो ये चीज़ें सारी वहाँ पर माइन्यूटली देखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया शेख साहब। असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज केस के अंदर मुलजमान ने जो इंकशाफ किए वो होशरबा हैं कि 17, 18 और 19 वारदातें कर चुके हैं। डकैती मज़ामत पर लोगों को ज़ख्मी भी किया है, कत्ल भी किया है, लेकिन ना तो कसूर पुलिस पकड़ सकी और ना ही लाहौर पुलिस पकड़ सकी। बिल आखिर लाहौर में एक वारदात के बाद उनको ट्रेस किया गया और अब पकड़े गए हैं। और मुलजमान ने ये भी बताया है कि उनके साथी जो हैं वो दौरान डकैती रेप के वाक़यात भी करते रहे हैं और पुलिस के मुकाबले में मारे भी जा चुके हैं। और अभी भी एक शख्स जो है वो स्पेशली वारदात करने के लिए, जिसके अंदर उसने अच्छा कारकर्दगी दिखानी हो, तो वो परफ्यूम लगाता है जो कि उसकी साबका गर्लफ्रेंड ने दी हुई, और उसके बाद वो बड़े धड़ल्ले से वारदात करता है। ऐसे मुलजमान जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी पुलिस अपने जो बेसिक काम है उनसे गाफिल है, फ़रोही कामों में पड़ी रहती है। पतंगबाज पकड़ लिए, पतंग फरोश पकड़ लिए या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ काम कर लिया, लेकिन लोगों की जो जानो माल और इज़्ज़त लूटने वाले हैं वो कई साल ऐसे ही वारदातें करते फिरते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर खौफ व हिरास जो है वो फैलाने का सबब बनते हैं। मुलजमान जिस तरीके से वारदात करते हैं वो तो इंतहाई गंभीर है ही है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा मुलजिम भी है जो वारदात करने से पहले बाकायदा परफ्यूम लगाता है और एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन उसमें से लेता है और उसके बाद वारदात करता है। और डेस्परेशन का ये आलम है कि हल्की सी भी रिटेलिएशन के ऊपर वो फायरिंग कर देते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मिराद गुल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मिराद, 5 बंदों का गैंग था, वारदातें करते थे, फिर वो वारदातों के बाद बीच में रेप करना शुरू हो गए। रेप के दौरान उन्होंने कत्ल भी करने शुरू कर दिए। अल्टीमेटली पुलिस को कहीं पे इतला मिली, रेड हुआ और 2 जो थे वो इनकाउंटर में मारे गए और 3 बच गए। अब जो 3 थे वो भी पिछले 3-4 सालों से मुसलसल वारदातें कर रहे हैं लाहौर और कसूर में, और कोई भी शख्स हल्की सी भी रिटेलिएशन करता है तो उसको गोली मार देते हैं। ये तो एक क्रिमिनल माइंडसेट हो गया। लेकिन उसके अंदर एक मुलजिम है जो परफ्यूम लगाता है बाकायदा वारदात करने से पहले, और उससे जब मैंने बात की तो वो कहता है कि मैं वारदात करके एक मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती है जिसके बाद मुझसे वारदात बहुत अच्छी होती है। ये कौन लोग हैं, किस तरह के माइंडसेट्स हैं? बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए आजकल टर्म यूज़ हो रही है डार्क पर्सनैलिटी उनकी होती है। दे हैव सम चंक्स ऑफ डार्क पर्सनैलिटी। उनकी जो ट्रेड्स होती हैं, जो उनकी कहते हैं ना, उनकी मेक में, उनकी शख्सियत का हिस्सा है ये। अब साइकोपैथोलॉजी जो चल रही है, एक जहनी बीमारी तो चल रही है, किसी को मारना और उसमें तस्कीन हासिल करना, ये एक जहनी बीमारी उनकी मेरे ख्याल में जो डिटेक्ट नहीं हुई या किसी ने उन्होंने मदद नहीं दी और उनकी भी किसी ने मदद नहीं की। परफ्यूम लगा के अपने आप को तस्कीन देना, जैसे हम लोग नहीं कहते कि एक मूड बनाते हैं हम पढ़ाई के लिए और फिर हम पढ़ते हैं तो अच्छा पढ़ा जाता है। वो अपना मूड बनाता है किसी पुरानी याद के तहत और फिर वो वही अमल करता है रिवेंजफुल होके, या शायद वो जो तस्कीन उसको उस परफ्यूम से मिलती है उसके बाद वो उसी में रहकर एक और जो उसकी हवस है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वो खून देखने की हवस, खून करने की हवस, लूटने की हवस, अगले को दुखी करने की हवस, तो वो जो सैडिज्म उसमें है और दूसरे को तकलीफ दे के जो राहत मिलती है वो उसका इजहार इस तरह करता है। मेरा बड़ी माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में ये इस्लाह बहुत आम है कि ये प्यार में नाकामी के बाद ऐसा हो गया है। क्या वाकई अगर कोई शख्स को अगर कोई रिलेशनशिप है उसके अंदर नाकामी हो जाए तो वो नेगेटिव माइंड हो सकता है?
डिपेंड करता है, जिसने कुछ ज़्यादा जिस पे फिल्मी असर आए तो वो ज़्यादा नेगेटिव माइंड हो जाता है कि मैं बदला लूँगा, मैं ये करूँगा। वरना बेसिक प्यार जो हमें हमारी जो लोक दास्तानें हैं, जो हिस्ट्री है वो बताती है, प्यार में रिवेंज तो नहीं होता। प्यार तो करने का नाम है, दे देने का नाम है, छोड़ देने का नाम है, आज़ाद करने का नाम है। ये जो प्यार में विनिंग है ना, कि मैंने विन करना है, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती, इस तरह बर्बाद करना, उजाड़ना, रिवेंज, बदले वगैरह, तो ये एक, मैं तो कहूँगी कि ये ज़हनी बीमारी जो है, ये एक ओवरऑल ज़हनी बीमारी की और बदले की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो फिर कहीं से कहीं आगे बढ़ती ही जाती है। ये जो मुलजिम है जो परफ्यूम लगाता है, बकौल उसके वो किसी लड़की को पसंद करता था, लड़की भी उसको पसंद करती थी, उसके बाप ने, लड़की के बाप ने इसको इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया कि ये गरीब है, और लड़की ने ब्रेकअप से पहले उसको ये वाली परफ्यूम दी थी जो वो परफ्यूम यूज़ करता है, और अब वो उस लड़की के बाप को अमीर होकर दिखाना चाहता है। ये सारा कुछ फिल्मी चीज़ों में तो बहुत अच्छा लगता है, ड्रामों और फिल्मों में। ये रियल लाइफ में बंदा कर रहा है, क्या ये कोई जहनी बीमारी है या वो जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पैसा कमाऊंगा, और उस लड़की को सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए? देखें, अगर जो बंदा सेन हो, किसी में अकल को इस्तेमाल करने की सकत हो, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा कि किसी को बर्बाद करके अपने आप को आबाद करना चाहेगा। कोई ना कोई जहनी खलल तो है ना, जिसने आपको ये सोचने, पहले तो देखें आपकी सोच कि मैं अगले को तबाह करूं, खुद मैं अमीर बनूं, और मैं जिस लड़की की शादी हो गई है या वो चली गई है मेरी जिंदगी से, या उसने मुझे छोड़ दिया, चलो आखिरी एक टोकन ऑफ गुड बाय दे दिया, तो मैं अब छोड़ दूं, अगले को अपनी जिंदगी जीने दूं, मैं अपनी जिंदगी जीऊं। मगर ये जो रिवेंज आना, देखें इवन कुरान में भी है कि जो हसद है, ये भी एक वो एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला करती है। ये रिवेंज भी तो देखें, हम नेगेटिविटी हम इतनी अपने अंदर भर लेते हैं कि हम अगले को तबाह करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, चाहे अपनी भी तबाही साथ साथ हो रही है, मगर दूसरे को तबाह करेंगे तो इससे कम, इससे ज़्यादा और जहनी बीमारी क्या हो सकती है? इन लोगों का इलाज क्या है? ये जो रिपीटेडली इस तरह वारदातें कर रहे होते हैं और इस तरह कत्ल गारत कर रहे होते हैं, इनका हल क्या है? ये रिहेबिलिटेट हो सकते हैं? इनको एक अच्छा शहरी बनाया जा सकता है, माशरे के लिए एक अच्छा शहरी बनाकर किस तरह से लाया जा सकता है? जिस तरह की हरकतें आप सुन रही हैं, डकैती के दौरान रेप करना, डकैती मज़ामत में बंदे को कत्ल कर देना, परफ्यूम लगाना, और लड़की के बाप को ये दिखाने की कोशिश करना कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं अमीर हो सकता हूँ। देखिए, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं ये कहूँगी कि हम किसी को ज़बरदस्ती तो रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, किसी का ज़मीर ज़बरदस्ती नहीं जगाया जा सकता। अनलेस एंड अनटिल उसका ज़मीर जागे, वो अपनी होश में आए कि क्या वो ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसको सही गलत की पहचान ही नहीं है। जब इंसान के लिए जो गलत है वही सही हो, तो फिर आप उसको कैसे ज़बरदस्ती किसी सही राह पे लाएंगे? इन सब के लिए रिहेबिलिटेशन, ऑफ कोर्स, हम देखें कानून क्या करेगा, कानून तो इनको पकड़ लेगा ना, पकड़ के इनको मौका देगा, मगर डिपेंड इन पे करता है कि ये मौका लेना चाहते हैं कि नहीं। ये अपने मर्ज में कितने को मुब्तला है और कितने को इस मर्ज को अपने ऊपर तारी कर चुके हैं और उससे निकलना चाहते हैं, ये इनका फैसला होगा। हाँ, इनको अगर मदद चाहिए होगी, तो जब तक ये खुद से उस मदद के लिए तलबगार नहीं होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम ज़बरदस्ती उनको मदद प्रोवाइड करें, तो वो उस तरह से फिर मदद भी नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुराद गुल, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। माहिर कानून की भी आपने गुफ्तगू सुनी, पुलिस की गुफ्तगू सुनी, और जो ज़ख्मी और मरने वाले के पुरसाथ हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, पुलिस का बयान आपने सुना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुलजिमान के आपने बयान सुनने कि पुलिस इनकाउंटर वो देख चुके हैं, लोगों को वारदात के दौरान कत्ल करना, ज़ख्मी करने से वो बिल्कुल भी गुरेज़ा नहीं होते, और अजीब सी जहनी सा बीमार सा इंसान है जो परफ्यूम लगा के मोटिवेशन हासिल करता है और वारदात करता है। कंक्लूजन यही है कि मुलजिमान को अगर पहली वारदात के बाद ही पुलिस पकड़ लेती तो वो इतने हार्डन क्रिमिनल्स ना होते, वो इस नहज तक ना पहुँचते जो अब वो हरकतें करते फिर रहे हैं। लाखों रुपया कमाने की हवस जो है उनको ये तमीज़ भी भुला चुकी है कि एक बंदा जो है उसकी बीवी बच्चे हो सकते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, वो रकम लेके जा रहा है, उसने कर्जा लिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस बंदे से पैसे छीनने और पैसे छीनने के दौरान अगर रिटेलिएशन होती है, मज़ामत होती है, तो उसको कत्ल करने से गुरेज़ा नहीं है। पुलिस अगर यहाँ पे अपना किरदार अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम दे, मुलज़िमों को गिरफ़्तार करे, उनको सज़ाएँ दिलवाने के लिए जामिया चलान बनाए,
तो इस किस्म के जो ज़हनी बीमार लोग हैं जो जराइम कर रहे हैं और अपनी उस जराइम की दुनिया में नाम पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, उनको बहुत पहले ही रोका जा सकता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।